بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس عالم چینل۔ میرے محترم ناظرین، آج میں لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے سامنے ایک اللہ والے مزدور کا واقعہ۔ میرے محترم ناظرین اور میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے محترم ناظرین اور میرے پیارے دوستو، یہ بغداد شہر کے چوراہے میں سے ایک چوراہے کا منظر ہے، جہاں شہر بھر کا غریب اور دہاڑی دار مزدور طبقہ اپنے خاندان کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بھیڑ جمائے رہتا تھا۔ اسی شہر بغداد میں ایک امیر شخص رہتا تھا جس کا نام حاسم تھا۔ حاسم کو گاہے بگاہے کام کروانے کے لیے کسی نہ کسی دہاڑی دار مزدور کی ضرورت رہتی تھی۔ ایک دن حاسم اس نیت سے چوراہے پر پہنچا کہ کوئی مزدور مل جائے جس سے وہ آج کے دن کا کام کروا سکے۔ چوراہے پر لگی مزدوروں کی بھیڑ یوں ایک سمت سے دوسری سمت جاتی تھی جیسے سمندر کی لہریں ہو جو بار بار ساحل سے آ کر ٹکراتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی کوئی دولت مند کسی مزدور کی تلاش میں آتا، چوراہے سے ایک سے بڑھ کر ایک اونچی آواز آتی کہ جناب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ حاسم کو چوراہے پر مزدوروں کی اس حالت پر بڑا ترس آیا، مگر ساتھ ہی اسے تعجب بھی ہوا، کیونکہ مزدوروں کی اس بھیڑ میں ایک ایسا مزدور بھی تھا جو بالکل چپ چاپ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بالکل پرسکون ہے کہ اس کی خریدار خود اس کے پاس چل کر آئے گا۔ حاسم سیدھا اس نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں کام کی ضرورت ہے؟ نوجوان بولا، میں آپ کا کام ضرور کروں گا۔ اگر میں اس چوراہے پر بیٹھا ہوں تو کام کے لیے ہی بیٹھا ہوں، مگر میں دہاڑی کے 50 درہم لوں گا، کیا آپ کو منظور ہے؟ حاسم حیران ہو کر بولا، 50 درہم یہ تو بہت زیادہ ہے، باقی مزدور تو صرف 5 درہم ہی لیتے ہیں، آخر تم ایسا کیا کرتے ہو کہ جس کے میں تمہیں 50 درہم دوں؟ نوجوان بولا، اگر آپ کو منظور نہیں تو 5 درہم والے مزدوروں کی بھرمار لگی ہوئی ہے، آپ انہی میں سے کسی کو لے جائیں۔ حاسم کو بڑا تعجب ہوا، پھر کچھ سوچ کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ نوجوان بولا، ذرا رکیے، میری کچھ شرائط بھی ہے، ان کی منظوری کے بغیر میں کبھی مزدوری پر نہیں جاتا۔ حاسم حیرت سے بولا، کیا کہا؟ اے نوجوان، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہے اور اس حساب سے شرطیں لگانے کا اصل حقدار میں ہوں۔ نوجوان بولا، اگر آپ میری شرائط منظور نہیں کرتے تو میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ حاسم بولا، اچھا ٹھیک ہے، ذرا بتاؤ کہ تمہاری شرطیں کیا ہے؟ نوجوان بولا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ میرے بارے میں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہوگی تو اس وقت سے لے کر نماز پڑھنے تک میں آپ کا مزدور نہیں رہوں گا اور اس دوران میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا اور نہ ہی آپ مجھ پر کوئی حکم چلانے کے مجاز ہوں گے۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا تو میری مرضی ہوگی کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں یا نہ دوں۔ حاسم یہ سن کر مسکرا کر بولا، بڑے ہی انوکھی دہاڑی دار ہو، مجھے یہ بھی منظور ہے، اب اپنا سامان لو اور کام پر چلو۔ چنانچہ حاسم اور وہ نوجوان چلتے چلتے حاسم کے گھر پہنچ گئے۔ نوجوان نے کام کرنا شروع کیا تو حاسم دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو کام ایک مزدور پورے دن میں کرتا ہے، اس نوجوان نے تو وہ کام 2 گھنٹے میں ہی کر دیا ہے۔ حاسم نے اسے مزید کام پر لگایا اور خود کہیں باہر چلا گیا۔ مزدور گلی میں مٹی کھود رہا تھا کہ اچانک اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ مزدور نے کدال وہیں پھینکی اور وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھانے لگا۔ جب حاسم کے بیٹے نے دیکھا کہ مزدور مٹی کے ٹیلے گلی میں ہی چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس نے کہا، اوئے ذرا رکو، اس مٹی کو تو برابر کرتے جاؤ۔ نوجوان بولا، خاموش، اس وقت میں تمہارے باپ کی بھی نہیں سنوں گا۔ جب اذان ہو جاتی ہے تو میں دنیا کا ہر کام بھول جاتا ہوں اور صرف اسی کی سنتا ہوں جو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر تم چاہو تو مٹی کو
खुद ही बराबर कर सकते हो, वैसे भी मेरी तुम्हारे बाप से बात हो चुकी है। चुनांचे नौजवान नमाज पढ़कर वापस आया और दोबारा काम पर लग गया। इतने में हाशिम बाहर से वापस आया और नौजवान से पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं? नौजवान कहने लगा कि मैं रोजे से हूँ। हाशिम बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, अभी तो रमज़ान शुरू भी नहीं हुआ है, यह नौजवान नफली रोज़े रखकर मजदूरी कर रहा है। जब शाम का वक्त होने लगा तो हाशिम बोला, ऐ नौजवान, यह लो तुम्हारे 50 दिरहम, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान बोला, हुजूर, मैंने आपसे कहा था कि जिस सवाल का जवाब मैं ना देना चाहूँ आप उसके मुताल्लिक मुझसे पूछने का जवाब नहीं रखते। मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से कासिर हूँ, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज, यह कहकर वह वहाँ से चल पड़ा और हाशिम हैरत से उसे देखता रहा, मगर दिल में तजस्सुब लिए जैसे तैसे इसने रात गुजारी और अगले रोज़ दोबारा चौराहे पर पहुँच गया। एक बार फिर मजदूरों का जत्था अपने दिन भर के मालिक की तलाश में शोर बर्पा कर रहा था, मगर आज वह नौजवान मजदूर वहाँ मौजूद नहीं था। हाशिम ने दूसरे मजदूरों से पूछा तो उनमें से एक ने बताया कि हुजूर, वह सिर्फ पीर और हफ्ते वाले दिन ही आता है। यह सुनने के बाद हाशिम वहाँ से घर की तरफ चल पड़ा। अभी वह कुछ ही देर चला होगा कि एक बूढ़े आदमी ने पीछे से आवाज़ दी, बेटा जरा बात सुनो। यह एक इंतहा ज़ईफ़ शख्स की आवाज़ थी जो बमुश्किल ही चल पा रहा था। इस ज़ईफ़ शख्स ने कहा, क्या आप मुझे कुएं वाले दरख्त के पास छोड़ देंगे? हाशिम बोला, जी ज़रूर छोड़ दूंगा, मगर आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? ज़ईफ़ आदमी बोला, दरअसल मेरा बेटा काफ़ी अरसे से बीमार है और आज मेरे बेटे की दवा ख़त्म हो गई है, मगर मुझे ज़र्रा बराबर भी कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह ने मेरे बेटे के लिए हफ्ते भर की दवा का बंदोबस्त कर रखा है। तुम बस मुझे वहाँ पहुँचा दो, खुदा तुम्हें इस नेकी का अज्र देगा। बेटा हाशिम, जो पहले ही हैरान और परेशान था, इस बूढ़े की बात सुनकर हैरत की गहराइयों में चला गया। इसने ज़ईफ़ शख्स को कुएं के दरख्त के पास छोड़ा और ख़ुद एक तरफ छुपकर देखने लगा कि आखिर मैं भी तो देखूं कि ज़ईफ़ शख्स को दवा कहाँ से पहुँचती है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद अचानक तेज़ कदमों से एक आदमी चलता हुआ आया, जिसने अपना चेहरा नीले रुमाल से छुपाया हुआ था। वह आदमी वहाँ पहुँचा और कहने लगा, ऐ बुजुर्गवार, मुझे माफ़ करना, आज ज़रा देर हो गई। इस आदमी ने अद्वियात का थैला इस ज़ईफ़ शख्स को पकड़ाया और जाने के लिए पलटा ही था कि ज़ईफ़ शख्स ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ए खुदा के नेक बंदे, मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, मैं अपने मोहसिन को अपनी आँखों से देखकर दुआ देना चाहता हूँ। नीले रुमाल वाला आदमी बोला, ऐ बुजुर्गवार, यकीन मानिए इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बस यही समझ लें कि उस नीले आसमान वाले ने इस नीले रुमाल वाले को आपकी मदद करने का वसीला बनाकर भेजा है। यह कहते ही नीले रुमाल वाला वहाँ से वापस चला गया। हाशिम छुपकर यह सारा माजरा देख रहा था और एक लम्हे के लिए तो भूल ही गया कि वह तो इस नौजवान मजदूर की तलाश में आया था। वह दौड़ता हुआ इस ज़ईफ़ शख्स के पास गया और पूछने लगा कि यह आदमी कौन था जो आपकी बेलौस मदद करने आया। ज़ईफ़ आदमी ने जवाब दिया, मैं इस आदमी को नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब भी मेरे बेटे की दवा ख़त्म होती है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और यह नीले रुमाल वाला आदमी मुझे हर दफ़ा यह दवा दे जाता है। हाशिम ने ज़ईफ़ आदमी को इसके घर छोड़ा और वापस अपने घर आ गया। अगले रोज़ वह शहर के चौराहे पर दोबारा गया और उसने देखा कि वाकई वह नौजवान मजदूर वहाँ मौजूद नहीं था, मगर आज हाशिम उस दिहाड़ीदार के साथ साथ उस नीले रुमाल वाले आदमी को भी ढूंढ रहा था, मगर बेसु दोनों में से कोई भी न मिला। वह तजस्सुस के आलम में बगदाद के गली मोहल्लों में उन्हें ढूंढने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि साथ वाले घर से कुछ बच्चों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है और माँ उन बच्चों को दिलासा देने की कोशिश कर रही है। वह अपने बच्चों से बार बार यही कह रही थी कि फ़िक्र ना करो, वह अभी आता होगा। हाशिम अभी यह सारा माजरा देख ही रहा था कि एक घुड़सवार हफ्ते भर के राशन के साथ इस घर में दाखिल हुआ। यह वही नीले रुमाल वाला आदमी था।
हाशिम दरवाजे के करीब गया तो देखा कि छोटे बच्चे जो अभी भूख से बिलक रहे थे वह मारे खुशी के नीले रुमाल वाले से लिपट लिपट कर मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और उनकी माँ अपने दोनों हाथ उठाकर उसे दुआएं दे रही थी। हाशिम अभी यह सारा मंजर देख ही रहा था कि नीले रुमाल वाला आदमी दरवाजे से बाहर निकला। हाशिम ने उसे रोका और पूछा कि ए बंदे खुदा, तूने तो मुझे अपना गिरवी बना लिया है, मुझे बताओ तुम कौन हो? अगर तुम मुझे अपने साथ रख लो तो खुदा की कसम मैं सारी उम्र तुम्हारी गुलामी करूँगा। नीले रुमाल वाले ने इसकी तरफ एक लम्हे के लिए बेगौर देखा, गोया उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। दूसरे ही लम्हे वह घोड़े पर सवार हुआ और बिना कुछ कहे वहां से हवा की तरह चला गया। जब नीले रुमाल वाला वहां से चला गया तो हाशिम इस औरत के घर में दाखिल हुआ। खस्ता हाल मकान अपनी आप बीती अपनी हालत से बयान कर रहा था कि यह एक बेवा औरत का मकान है। हाशिम ने औरत से पूछा, क्या आपको मालूम है कि यह नीले रुमाल वाला शख्स कौन है? औरत ने जवाब दिया, मैं उसे नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि यह कोई फरिश्ता सिफत इंसान है जो मुझे हर हफ्ते खाने पीने का सामान मुहैया कराता है। आज वह मामूल से थोड़ी देर से आया और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे बच्चों के रोने की आवाज़ गली तक पहुंच गई, वरना इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह एक लम्हे के लिए भी देर से आया हो। इतना सुनने के बाद हाशिम वहां से पलटा और सोचो कि एक जहान में खोया हुआ घर आ गया। अगले 2 दिन भी हाशिम का यही मामूल रहा। वह बगदाद की गलियों और बाजारों में इस दिहाड़ीदार और नीले रुमाल वाले दोनों आदमियों को ढूंढता रहा, मगर दोनों का कहीं अता पता न मिल सका। हफ्ते वाले दिन वह चौराहे पर पहुंचा और देखा कि वह दिहाड़ीदार नौजवान वहां मौजूद था। हाशिम सीधा चलता हुआ इस दिहाड़ीदार नौजवान के पास गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बाकी मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम सिर्फ पीर और हफ्ते वाले दिन ही आते हो। चलो अब मेरे साथ चलो, मैंने भी ठान ली है, चाहे तुम पीर को आओ या हफ्ते को, काम तो मैं तुमसे ही करवाऊंगा। नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मगर मेरी शर्तें तो याद है ना? हाशिम बोला, हाँ अच्छी तरह याद है। नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मगर हफ्ते वाले दिन मेरी मुआवजे की शर्त बदल जाती है। हाशिम मुस्कुरा कर बोला, तो क्या तुम अब हफ्ते वाले दिन मुझसे 50 की बजाय 100 दीनार लोगे? नौजवान दिहाड़ीदार बोला, नहीं, हफ्ते वाले दिन मैं सिर्फ 3 दीनार लेता हूँ। हाशिम कहने लगा, भाई तुम्हारी शर्तें तो मुझे हर बार हैरान कर देती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पीर वाले दिन 50 लेते हो मगर हफ्ते वाले दिन सिर्फ 3, आखिर ऐसा क्यों? नौजवान दिहाड़ीदार बोला, हुजूर मैंने आपसे कहा था कि जिस सवाल का जवाब मैं ना देना चाहूँ नहीं दूंगा। चुनांचे हाशिम ने दिहाड़ीदार मजदूर को अपने साथ लिया और घर जाकर काम पर लगा दिया। अगले कई महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। हाशिम हर पीर और हफ्ते को चौराहे पर जाता और नौजवान दिहाड़ीदार हर बार अपनी शर्तें याद करवाता। हाशिम हर बार उसकी शर्तें सुनने के बाद उसी से ही काम करवाता। इस दौरान वह बगदाद के गली बाज़ारों में भी घूमता रहा और अक्सर औकात उसे नीले रुमाल वाला आदमी भी नज़र आ जाता। हर बार उसे किसी न किसी मजबूर और लाचार की मदद करते हुए पाता। इसने कई बार उसे रोककर पूछने की कोशिश की कि आखिर वह कौन है और कहाँ से आता है, मगर हर बार वह आदमी इसे कुछ लम्हे के लिए देखने के बाद वहाँ से चला जाता। एक रोज़ हाशिम चौराहे पर इस दिहाड़ीदार मजदूर को लेने गया तो उसे वहाँ न पाया। उसने दूसरे मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हुजूर आज वह नहीं आया। हाशिम ने पूछा कि क्यों नहीं आया? मजदूरों ने जवाब दिया, हुजूर आज उसकी तबीयत नासाज है, मगर उसने आपके लिए एक पैगाम भेजा है कि फलां गली के नुक्कड़ पर इस नाचीज का मकान है। हुजूर इसने कहा था कि वह वहां आपका इंतज़ार करेगा। हाशिम ने जब यह सुना तो दौड़ता हुआ इस मकान की तरफ गया। वहां पहुंचकर उसने दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, हुजूर अंदर आ जाइए, दरवाज़ा खुला है। हाशिम जब अंदर गया तो देखा कि दिहाड़ीदार की हालत बहुत गैर थी और जिस्म कांप रहा था। दिहाड़ीदार नौजवान ने कहा, हुजूर मौत बरहक है, कोई नहीं जानता कि मौत कब आ जाए। मुझे लगता है कि मेरा वक्त आन पहुंचा है। अगर आज रात मेरा इंतकाल हो गया तो
हुजूर से दरख्वास्त है कि मेरे मरने के बाद मेरे कुछ काम कर दीजिएगा, अल्लाह इसका आपको अज्र देगा। मैं आपके हर उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जिसका आप मुझसे इसरार करते थे। इतना कहने के बाद इसने पास पड़े हुए एक छोटे से संदूक को खोला और इसमें से एक पीतल की हांडी निकाली जिसका मुंह ढक्कन से अच्छी तरह बंद था। नौजवान ने पीतल की हांडियां हाशिम को देते हुए कहा, हुजूर, बगदाद के चौराहे के करीब एक दरख्त है, यह हांडियां लेकर आप उस दरख्त के नीचे खड़े हो जाना और तब तक वहां खड़े रहना जब तक एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वहां न आ जाए। वह आपसे इस हांडियां का तकाजा करेंगे, आप यह हांडियां उनके हवाले कर देना। फिर उसने एक अंगूठी हाशिम को देते हुए कहा, हुजूर, यह अंगूठी खलीफा की अमानत है, यह आप उसे पहुंचा दीजिएगा। मुझे मालूम है कि वह आपसे बात करने पर आसानी से आमादा न होगा क्योंकि आखिर वह बादशाह है। हुजूर, मेरी तीसरी दरख्वास्त यह है कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरे मुर्दा जिस्म को चारपाई समेत बाहर गली में रख देना, मेरे कफन दफन का इंतज़ाम हो जाएगा। नौजवान से अंगूठी और पीतल की हांडियां लेते हुए हाशिम ने कहा कि तुम्हारे काम बखूबी अंजाम दूंगा, मगर मेरे सवालों के तो तुमने जवाब दिए ही नहीं। तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? हफ्ते वाले दिन सिर्फ 3 दिरहम लेकर तुम पूरा दिन काम करते हो, मगर पीर वाले दिन तुम 50 दिरहम लेते हो। नौजवान बोला, अगर आपने मेरे ये सारे काम कर दिए तो आपको आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। अब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दें, मैं अपने रब के साथ तन्हाई चाहता हूँ। आज रात मैंने बड़ी लंबी माफ़ी मांगनी है। हाशिम बोला, आखिर मैं तुम्हें इस हाल में कैसे छोड़ जाऊँ? मगर नौजवान ने इसरार करने की वजह से हाशिम न चाहते हुए भी वहाँ से आ गया। उस रात हाशिम बुरी तरह बेचैन रहा, पूरी रात करवटें बदलते बदलते गुजार दी। अल्लाह अल्लाह करके सूरज ने जब शफक की सुर्खी बिखेरी तो उसने फ़ौरन नौजवान दिहाड़ीदार के घर की तरफ दौड़ लगा दी। जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि दरवाज़ा तो पहले से ही खुला है। हाशिम घर के अंदर दाखिल हुआ तो खुशगवार हवा के झोंके उसका इस्तकबाल कर रहे थे। जब कमरे में जाकर देखा तो पता चला कि नौजवान की रूह तो परवाज़ कर चुकी है। हाशिम की आंखें इस मंजर को देखकर आंसुओं से तरबतर हो गई। इसने वसीयत के मुताबिक नौजवान के जनाजे को बाहर गली में रख दिया और तेजी के साथ दौड़ता हुआ चौराहे की तरफ भागा और हांडियां लेकर उस दरख्त के पास खड़ा हो गया जिस दरख्त का उस नौजवान ने जिक्र किया था। कुछ ही देर बाद लोगों का तांता बंधने लगा। वह सब के सब लोग गरीब और बदहाल थे। हाशिम उन सबको देखकर हैरान रह गया कि आखिर लोग यहाँ क्यों जमा होना शुरू हो गए। वह सब के सब अफसुर्दा चेहरों के साथ इस पीतल की हांडियां को देख रहे थे। कुछ ही देर बाद एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वहां आए और हाशिम से हांडियां लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हाशिम ने हांडियां उन बुजुर्ग के हवाले कर दी। बुजुर्ग ने पुरनम आंखों से हांडियां को खोला और इसमें हाथ डालकर बाहर निकाला तो हाथ में एक नीला रुमाल मौजूद था और उसमें से 2 दिरहम खन खन करते हुए ज़मीन पर गिर पड़े। दर हकीकत यह वही नीला रुमाल था जिसे गरीबों का मददगार इंसान अपना चेहरा ढांपने के लिए इस्तेमाल करता था। बुजुर्ग के हाथ में नीला रुमाल देखते ही चौराहा चीख व पुकार और आहो बका से गूंज उठा। चौराहे पर कोई भी शख्स ऐसा न था जिसकी आंखों में आंसू न हो। हाशिम ने जब यह सारा मंजर देखा तो अपने बहते आंसुओं को रोक न सका। इस पर यह राज खुल चुका था कि वही नौजवान दिहाड़ीदार दरअसल नीले रुमाल वाला आदमी था। सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने हाशिम के तरफ देखते हुए कहा, तुम सही समझे, यह वही अल्लाह वाला नौजवान है जो हफ्ते में 2 दफ़ा मजदूरी करता, पीर को 50 दिरहम लेकर गरीबों की मदद करता और हफ्ते को जो 3 दिरहम लेता था इससे पूरा हफ्ता खुद गुजारा करता था। और जिस दिन भी यह फारिग होता था यह सिर्फ अल्लाह की याद में मशगूल रहता था। और इस रुमाल में से नीचे गिरने वाले 2 दिरहम जो तुमने देखे यह वह अपने कफन दफन के लिए छोड़ गया है। जिन लोगों की वह मदद किया करता था उन सबको इसने बता रखा था कि अगर किसी दिन मैं तुम्हारी मदद के लिए न आऊँ तो तुम सब लोग इस चौराहे पर इस दरख्त के करीब इकट्ठे हो जाना। अगर तुम लोगों को यह हांडियां और रुमाल मिल गया तो समझ जाना कि मैं इस दुनिया से चला गया हूँ। हाशिम ने इस बुजुर्ग से पूछा, मगर यह नौजवान आखिर था कौन?
कोई इसका बाली बारिश भी था कि नहीं। बुजुर्ग ने जवाब दिया, इस बात का तो मुझे इल्म नहीं, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज बगदाद में बहुत सारे घरों के चूल्हे नहीं जलेंगे, बहुत से बीमारों को दवा देने वाला मसीहा नहीं मिलेगा, कितनी बेवाहों के बच्चे भूख से बिलबिलाएंगे, मैं नहीं जानता। इसके बाद सारे का सारा मजमा ज़ारो कतार रोते हुए इस नौजवान के घर पहुंचा, जहां गली में इस नौजवान का जनाजा इंतज़ार कर रहा था। सब ने मिलकर नौजवान के कफन दफन में शिरकत की। हासिम जब नौजवान के आखिरी फ़राइज़ से फारिग हुआ तो उसे याद आया कि खलीफा को इसकी अमानत पहुँचाना है। चुनांचे वह तेज कदमों से दौड़ता हुआ महल की तरफ चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो देखा कि खलीफा अपने वजीर के साथ बाग में टहल रहा था। हासिम ने खलीफा से बात करने की कोशिश की तो खलीफा बोला, अभी मेरे पास वक्त नहीं, तुम बाद में आ जाना। हासिम बोला, जनाब मेरे पास एक अंगूठी है जो आपकी तरफ भेजी गई है। यह सुनते ही खलीफा हासिम को दूसरी तरफ ले गया और बोला, दिखाओ ज़रा कौन सी अंगूठी है। हासिम ने अंगूठी दिखाई तो खलीफा ने अंगूठी को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और अंगूठी चूमते हुए पूछा, तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिली? तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे इस अंगूठी वाले के पास ले चलो। हासिम बोला, अंगूठी वाले का तो इंतकाल हो चुका है, आज ही बगदाद भर के जम्मे गफीर ने उसे दफनाया है। यह सुनते ही खलीफा धारी मार मार कर रोने लगा और हासिम से कहा कि मुझे इसकी कब्र पर ले चलो। खलीफा नंगे पैरों बगदाद की गलियों में दौड़ता हुआ नौजवान की कब्र से जाकर लिपट गया और रोते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मगर तुम नहीं मिले, और अगर अब तुम मिल गए तो किस हाल में मिले हो? हासिम ने पूछा, हुजूर आप इस नौजवान की मौत पर इतने गमज़दा क्यों हैं? खलीफा बोला, यह तो कब्र तुम देख रहे हो, यह मेरे बेटे की कब्र है। दरअसल ये बचपन ही से एक बुज़ुर्ग के पास जाया करता था और पूरा पूरा दिन अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देता था। इसने मुझे कितनी बार समझाया कि मैं दुनिया के माल व असबाब के पीछे न भागूं। कई बार इसने मुझे ताकीद की कि अगर मैं यूं ही दुनिया का माल व असबाब जमा करता रहा तो वह मुझे छोड़कर चला जाएगा। यह कहता था, अब्बा हुजूर इतने गुनाह मत कमाइए जिसका बाद में हिसाब न दिया जा सके, मगर मैंने इसकी एक न सुनी। लोग अपनी औलाद को समझाते हैं, मगर यहाँ औलाद अपने वालिदैन को समझा रही थी, मगर अफसोस है मुझ पर, मैंने इसकी एक ना सुनी। फिर मुझे भी इसकी सज़ा मिली और इसने मुझसे मुंह फेर लिया और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और गुरबा की तरह ज़िंदगी गुजारने लगा। इसके बाद खलीफा काफ़ी अरसे तक उस नेक बुज़ुर्ग को ढूंढता रहा और आखिरकार उसी चौराहे पर उस दरख्त के पास उन बुज़ुर्ग को खड़े पाया। खलीफा ने बुज़ुर्ग के कदमों में गिरकर सच्चे दिल से तौबा की। उसने उन बुज़ुर्ग से कहा कि लाइए वह नीला रुमाल मुझे दीजिए, आज के बाद मेरा बेटा जो काम छोड़ गया था मैं खुद उसे जारी रखूँगा। मैं वादा करता हूँ कि यह नीला रुमाल मैं खुद अपने चेहरे पर लपेटकर और एक एक गरीब के घर जाकर उसकी मदद करूँगा। मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन लोगों तक हमारी आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन बआसानी पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।